Hello everyone, welcome back to Hey Coders. Today we will be solving the lead code question 1371. What is the question is find the longest substring containing vowels in even count. Let us understand the question first. So what we have to find is the longest substring, the length of the longest substring in which each vowel must be an even number of times. Okay, even number of times means 0 to 4 which are divisible by 2, the number which are divisible by 2. मतलब जो वॉवेल्स है उनका काउंट मस्ट बी इवन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, ए ई आई ओ यू that may occur 0 times, 2 times, 4 times. It should be an even count. Okay, let's see this question. What is the string given is this. So the longest substring here is L E to R. Okay. How so? The E occurs 4 times, but I consider whole string. The occurrence of O is 3, which we don't want. We want an even number of vowels. So we don't consider this string. We can consider this ELE, but this is not the longest substring. We want the longest substring, so we are not going to take this as a output. Okay, so the final output will be 13. The longest substring will be this. See the next example. Here E is 3 times, but we want only even number of vowels, so we are going to consider this substring because O is occurring only one time and the another vowels are also occurring only one time. Okay, in these substring we don't have any vowel, but 0 vowel. 0 is also a even number, means A is occurring 0 times, which is also acceptable. So the substring will be the length of a substring will be 6. So how to approach this question? If you remember the XOR operation, what it says is XOR operation. If 1 XOR 1 always returns 0, what we will going to do is, if E occurs, uh, initially we don't have any value, so we consider it as 0. Like suppose this would be E XOR with 0 results to E. Okay, when again E occurs, what will happen is already our mask is stored as E. When E XOR with E results to 0, it means whenever there is an even number of vowels, the output must be 0. And when there is odd number of vowels, it will results to 1. I hope you understand. These are the XOR operation. 1 XOR with 1 results to 0. 1 XOR with 0 results to 1. 0 XOR with 1 results to 1. And 0 XOR with 0 results to 0. Okay. See this question. थोड़े टाइम के लिए कोड साइड में रखो एंड थिंक ऑफ दिस कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे. इनिशियली वी आइटरेट स्टार्टिंग स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से वी आर एट ई and I move forward. When I encounter L, okay, I don't need to do anything because it is a consonant. Then I move to another E. ठीक है, जब मेरे को ये E मिला तो मेरे को समझ आ गया कि मेरे को दो वॉवेल्स तो मिल गए, मतलब दो ईज तो मिल गए, ई दो मिल गए, इवन नंबर ऑफ ईज मिल गए. तो व्हाट आई विल डू इज, मेरे को एक काउंट मिल रहा है तो मैं लेंथ में आई विल स्टोर 3. ठीक है, जब वापस मैं आगे जा रही हूँ तो मेरे को दूसरा वाला ई मिल रहा है, तो मैं देखूंगी कि मेरे को पहले भी कहीं ई मिल रहा था ना, तो मैं उस इंडेक्स को कंसिडर नहीं करूंगी, मतलब ये एल ई ई कंसिडर करूंगी क्योंकि आगे मेरा पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, मैं ये एक ई के साथ स्टिक ऑन नहीं हो सकती. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये भी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग था एल ई ई भी. फिर से लेंथ सेम 3 रहेगा. जब मैं टी पे पहुंची, जब भी अपन को कंसोनेंट्स मिल रहे हैं, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी नीड टू कंसिडर दैट
कंसोनेंट, लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कंसोनेंट। टी आया, एक्सेप्टेबल, सबस्ट्रिंग में ऐड हो गया, तो अभी मेरा सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा, LEET। अगेन वी व्हेनेवर वी गेट M, ठीक है, मैं जा रही थी मेरे को M मिला रास्ते में, तो M तो कंसोनेंट है, आई विल एक्सेप्ट इट, चाहिए मेरे को M, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग बनाना है, राइट। जब मेरे को I मिला, जब भी मेरे को I मिला, पहले मेरे को I नहीं था मेरे सबस्ट्रिंग में, मतलब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मेरा I हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उसको नहीं इंक्लूड करूंगी मेरे सबस्ट्रिंग में, और मैं देखूंगी कि मेरे को आगे कहीं और I मिल रहा है क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो कि मेरे मैक्स सॉरी जो कि मेरा लेंथ था 1 2 3 4 5 6 5 मेरा लेंथ था, और अभी भी मेरा लेंथ 5 ही रहेगा, क्योंकि मेरे को जब आई एनकाउंटर किया, मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा के रखूंगी, देर में भी चांसेस कि आगे जाके मेरे को कोई दूसरा आई मिले, ठीक है। नहीं मिलेगा तो भी कंक्लूड दैट कि मेरा सबस्ट्रिंग इतना ही रहेगा करके, LEETM करके, ओके। फिर n मिला, n है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और एंड लेंथ फाइंड कर लिया, बट लेंथ मेरा 1 ही रहेगा, क्योंकि जब मैं ये i को कंसीडर नहीं करूंगी ना, एक ही टाइम से तो मेरे i में कंसीडर नहीं करूंगी, सिर्फ n का सबस्ट्रिंग बनेगा, तो मेरा लेंथ 1 हो जाएगा, बट मेरा एक्सेप्टेबल इज 5, क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए। जब मैं आगे बढ़ी, जब मेरे को दूसरा आई मिला, what I will do is I will consider this whole substring and I will find the length and store it into the length variable as 7, sorry 1 2 3 4 5 6 7 8, length as 8, okay। वैसे ही आगे भी करते जाएंगे, ये नॉर्मल है, ये कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल अपन कैसे सोचेंगे, थॉट प्रोसेस, ठीक है। अभी जब भी मेरे को थर्ड टाइम ई मिल रहा था, आई वॉज चेकिंग कि मेरे पास पहले ई है या नहीं, राइट। जब भी मेरे को फर्स्ट टाइम ई मिला, आई हैव टू चेक समवेयर जहां पर मेरे को ई है या नहीं, तो व्हाट वी विल डू इज अपन को वो एलिमेंट चेक करना है, वो प्रेजेंट है या नहीं, और वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो भी चेक करना है, क्योंकि जब मेरे को ये थर्ड वाला ई एनकाउंटर हुआ, मेरे को समझा कैसे कि ये ई को निग्लेक्ट करना है, ये ई को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि मेरे को इसका इंडेक्स पता था। तो वी हैव टू स्टोर द एलिमेंट एंड एट विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट, मतलब उसका इंडेक्स, उस एलिमेंट का एंड उस एलिमेंट का इंडेक्स वी आर गोइंग टू सेव। अभी ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें दो दो इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते, दैट वुड बी हैश मैप, ठीक है। हैश मैप के अंदर वी कैन स्टोर, ई स्टोर कराएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स पे है वो स्टोर कराएंगे, ई था 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे स्टोर करा लिए। आई होप यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अभी एक बात है, अगर मैं ई को अगर मैंने हैश मैप में स्टोर कराया, तो मैं एक्सऑर नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी, राइट। ये ई नहीं होना चाहिए, तो व्हाट विल वी डू इज अपन बिट्स यूज करेंगे। ए सपोज मेरा फर्स्ट बिट होगा, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट बिट, ठीक है, मतलब 0001, ए जो है ये होगा, और मेरा ई जो है वो सेकेंड बिट को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज माय सेकेंड बिट विल बी 0010, ठीक है। वैसे ही आई जो है मेरे थर्ड बिट को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड बिट को आई, ओ जो है मेरे फोर्थ बिट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड यू जो है मेरे फिफ्थ बिट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस मीन्स इज ए मस्ट बी 1, अगर ये मेरे सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जो है वो 2 रहेगा, लाइकवाइज मेरा आई जो है वो 4 रहेगा, थर्ड बिट मीन्स 4 ना, फोर्थ बिट मतलब 8, फिफ्थ बिट मतलब 16। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है। अभी what we require is mask
चाहिए। मतलब फॉर जब इनिशियली अपन कंपेयर करा रहे थे, ई को एक्सऑर करा रहे थे, ई को एक्सऑर किससे कराएंगे, जीरो से। एंड मेरा मास्क जो है हमेशा अपडेट होते रहेगा, तो वी इनिशियलाइज मास्क एज जीरो। जब मेरे को फर्स्ट टाइम ई एनकाउंटर होगा तो वी डू जीरो एक्सऑर विथ ई, तो मेरे को क्या आएगा, ई मिलेगा। ठीक है, ई मिलेगा ना, जीरो एक्सऑर विथ ई मस्ट बी ई, मतलब मेरे को वन टाइम ऑड नंबर ऑफ टाइम ई मिला है। इतना समझा। ठीक है, अभी जब मेरे को थर्ड ई मिलेगा तो क्या होगा, लेट्स टेक द हैश मैप। मैं ना इनिशियली एक बेस कंडीशन है कंपेयर कराने के लिए, जीरो -1, -1 विल बी माई इंडेक्स, विल बी माई इंडेक्स। जब मेरे को ई मिला, ई इज व्हाट, 2। यहाँ से अपन ने अज्यूम करो कि बिट मैनिपुलेशन कर लिया, ई का वैल्यू इज 2। ठीक है, तो अभी जब मेरे को फर्स्ट टाइम ई मिला तो ई, सॉरी 2 कौन से इंडेक्स पे मिला, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब एल मिला, एल भी तो एक सबस्ट्रिंग हो सकता है राइट। तो अपन को एल का लेंथ फाइंड करना है, एल एक सिंगल एलिमेंट है, देख के अपन को पता चल रहा है लेंथ 1 है, बट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ। लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड एज इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब आई 1, कंसिडर इट 1। अभी मेरा मास्क का वैल्यू भी 0 से 2 हो जाएगा। जब मैंने ये चीज परफॉर्म किया, 2x 0 XOR विद 2 किया तो 2 हो गया। अब क्या होगा, मेरा मास्क जो है वो मैप में प्रेजेंट है राइट, मास्क मैप में प्रेजेंट है 2, उसका इंडेक्स क्या है 0, तो वी आर डूइंग द सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 - 0 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी जब अपन को दूसरा ई मिला, मतलब सेकेंड टाइम ई मिला, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स ई मिला, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मास्क फिर से ई मिलने के बाद, ऑलरेडी मास्क का वैल्यू 2 था, 2 और 2 परफॉर्म किया तो मेरे को क्या आएगा, 0 मिलेगा। तो अपना मास्क अपडेट होके 0 हो जाएगा। फिर से वी हैव टू फाइंड द लेंथ। अभी लेंथ कितना रहेगा, कौन सा इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स पे ई मिला, -0 मेरे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, कौन से इंडेक्स पे, -1 इंडेक्स पे। ठीक है, -1 इंडेक्स पे, तो ये क्या होगा, 3 मिला अपन को लेंथ, मिली ये लेंथ ई से लेके दूसरी ई तक, वैसे ही आगे भी करेंगे। ओके, अभी कोड देखते हैं, सिंपल। क्या करना है, हैश मैप लेना है, वी आर गोइंग टू टेक द हैश मैप, दोनों ही इंटीजर्स होंगे, इंटीजर, बिकॉज अपन ने वॉवेल्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट किया, बिट्स में कन्वर्ट किया, इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, अभी वी हैव टू डिफाइन अ मास्क विद 0, इनिशियली कुछ नहीं है मास्क मेरा। ठीक है, तो 0 रहेगा। अब व्हाट वी हैव टू डू इज मैक्सिमम लेंथ इंट ऑफ, हर बार मेरे को लेंथ फाइंड करना है, वो भी 0 इनिशियली। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, मेरे को पूरे लेंथ में आइटरेट कराना है ना, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अभी हर एक कैरेक्टर आइटरेट होगा, पूरे स्ट्रिंग, ये पूरे स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर आइटरेट होगा, तो अपन इंट, सॉरी कैर, कैरेक्टर ना, कैर ch इज इक्वल्स टू s डॉट कैर एट i। ठीक है, जब ये 0, i की वैल्यू 0 रही, इट मीन्स वो फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, जब i का वैल्यू इंक्रीज होके
1 हुआ, इट मीन्स वो L है, तो CH के अंदर L सेव होगा, L स्टोर होगा। इतना क्लियर है? अभी इफ कोई भी मेरा CH इक्वल्स टू A है, तो अपन को क्या करना है, मास्क को मैनिपुलेट करना है। मास्क XOR विथ A के लिए व्हाट वी कंसिडर्ड इज 1। सेम चीज एल्स इफ CH की वैल्यू अगर E है, तो मास्क विल बी मास्क XOR विथ 2 सेकेंड बिट। वैसे ही सॉरी वैसे ही I के लिए, I जो है मेरा थर्ड बिट था, थर्ड बिट मतलब 4, ओ मतलब मेरा फोर्थ बिट जो कि होगा 8, E मतलब मेरा फिफ्थ बिट इज नथिंग बट 16। दिस मच इज क्लियर? ठीक है। अभी हमेशा वी आर गोइंग टू आइट्रेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ। ठीक है, पहले तो वो देखेंगे मैप डॉट कंटेन्स, अगर ऑलरेडी मेरे पास वो मास्क प्रेजेंट है क्या, कंटेन्स की फंक्शन मास्क प्रेजेंट है क्या, अगर है तो कैलकुलेट करो मैक्स मतलब लेंथ। लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने बोला था आई माइनस गेट ऑफ आई माइनस मैप डॉट गेट ऑफ मास्क, इससे मेरे को मास्क का इंडेक्स मिलेगा, मेरा लेंथ कैलकुलेट होगा। पर अपन को सिर्फ लेंथ नहीं कैलकुलेट करना, मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करना और लेंथ को हमेशा आइटरेट करके अपडेट करते रहना। सो व्हाट वी नीड टू डू इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेंथ माइनस सॉरी लेंथ कॉमा दिस। इससे इनिशियली मेरा लेंथ 0 था, 0 मिलेगा, और जब L अपन आइटरेट कर आ रहे थे इससे तो अपन को 1 मिलेगा। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके 1 मिलेगा। अभी 0 और 1 के बीच में कंपेयर होगा, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन चलेगा, 0 बड़ा है या 1, 1 बड़ा है, तो मेरा लेंथ अपडेट होके 1 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर एलिमेंट मैप में प्रेजेंट नहीं है, मतलब मास्क मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो अपन को पुट करना है मैप डॉट पुट। क्या पुट करेंगे, वो मास्क वैल्यू और इंडेक्स आई रिटर्न कराते हैं लेंथ, रिटर्न टाइप इज इंटीजर सो इंट, तो रिटर्न लेंथ। ठीक है, ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत है कंटेन्स की। Wait a second. First is right. Okay. If this 1 2 we forgot to write the base condition. Map dot put initially मैंने बोला था कि put करेंगे -1. This is the base condition जिससे अपन iterate करा रहे हैं initially. Base condition. Just run this. Yeah, it is accepted. Submitted. There is an error. Okay. Let me check. Map dot put. Okay, here it is U. Submit. Yeah. So if you found this video, please go and like, share, comment and subscribe. And stay tuned.